Hello students. So this is the second part. Actually this is the part 6 of the IUPAC nomenclature that we are going to start today. But the cyclic compounds which we have started in the last video. Okay, so this is the second part of the IUPAC nomenclature of cyclic compounds. Okay, so already one video we have done for the cyclic compounds. So there I have explained you in total 3 rules. Okay, so you can see that the previous video for that 3 rules. Okay, so 2 examples I have taken here, right? 2 examples I have taken here to like demonstrate that how that 3 rules were, right? So in that 3 rules in the last video we have seen that like if we take a cyclic compound, okay, so if we take a cyclic compound and in that compound if substituents are present, okay, सब्सटीट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट है साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर सब्सटीट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है, सो जो हम लोग का नंबरिंग होगा वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होना चाहिए. द नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड एंड अ substituent, normal substituent. These you can see, these are alkyl substituents CH3 and CH3, right? And this is a OH functional group. So how to number it? We have to start numbering from the OH, the functional group connected carbon. Functional group connected carbon से हम लोग का numbering start करना है अगर ऐसा कुछ है तो. So we will start the numbering. Okay, so numbering you start from here 1 and you can go either these clockwise direction, that means you can number 2 here. Okay, but we will not go clockwise, we will go anti-clockwise, like we will number 2 to this carbon and then 3. Why? Because if you go clockwise what will happen, all these I have explained in the previous video. हम लोग इस साइड से भी जा सकते हैं और इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी साइड से नंबरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इस साइड से नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5, जो मिथाइल ग्रुप से इसको नंबर 5 मिलेगा और अल्कोहल को तो 1 मिलना ही है. सो वो गलत हो जाएगा बिकॉज लोएस्ट लोकेंट रूल भी हम लोग को फॉलो करके चलना है. तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से सब्सटीट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है. सो अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे सो 1 2 3, तो सब्सटीट्यूएंट को 3 मिल रहा है, लेकिन इस साइड से अगर करोगे तो सब्सटीट्यूएंट को 5 मिलेगा. दैट्स वाई यू नंबर फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स 1 2 3 एंड देन 4 5 and 6. Okay, so now how to name? So the parent chain will be this one, cyclohexane, because it is a cyclic 6 carbon ring, so the name will be cyclohexane, right? We know that it is a cyclohexane. Now substituent, how do we write? So we will write these methyl substituent, because methyl groups, they are the prefix substituent. So we will write 3,3 dimethyl because there are two methyl groups 3 position पे है, तो इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा 3,3 dimethyl, ठीक है, 3,3 dimethyl. तब आएगा साइक्लोहेक्सेन एंड 1 पोजीशन पे है अल्कोहल. वी नो दैट द फंक्शनल ग्रुप दे आर द सफिक्स सब्सटीट्यूएंट, तो ये लास्ट में होगा. सो ई को ड्रॉप करना होगा, राइट, 1 ऑल. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3,3 dimethyl. Okay, cyclohexane, because it is a 6-membered cyclic compound, and 1 position there is a function OH functional group, so cyclohexane 1 all or cyclohexanol you can write, right? Now the second example, so in the second one more rule was there, that if there is a multiple bond and a substituent, अगर multiple bond है और substituent है तो multiple bond से numbering start करना है, multiple bond को more priority देना है, ठीक है. ये भी एक rule था जो हमने पिछले वीडियो में किया था कि अगर substituent present है रिंग में और मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल, सो हमेशा नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करना, ना कि सब्सटीट्यूएंट, राइट. सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड सो दैट द सब्सटीट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर, ठीक है. सो नंबरिंग आइदर फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट और फ्रॉम हियर. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, 1 like this, and we will not go this side like 2 3, we will not do like this, because again the same thing, that 2 3 4 5, that means the methyl group, this is the methyl group, so the methyl group will get number 5. but if we go from this side, अगर इस साइड से जाओ, so methyl group को क्या मिलेगा, नंबर 3. so लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ये वाला ही करेक्ट होगा, 1 2 3 इस साइड से. तो हमेशा रूल को फॉलो करते हुए भी लोएस्ट लोकेंट रूल को ध्यान में लेके चलना है कि जो भी सब्सटीट्यूएंट हो, ठीक है,
उसको जितना पॉसिबल लोएस्ट नंबर देने का कोशिश करो. तो नंबरिंग यू शुड डू from that side only, so that the substituents, whatever substituents are there, should get the lowest number. So how do we name it? So first of all, since it is a 6-membered cyclic ring, 6-membered cyclic ring का name होता है what? cyclohexane होता है. So cyclohexane लिख लो. सिंस देर इज़ अ डबल बॉन्ड है तो हेक्सेन नहीं आएगा, हेक्सीन आएगा. सो वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, हमेशा सिखाया कि 1 and 2. सो इसके बीच में लोएस्ट 1 है, इसलिए वी विल राइट 1 इन एंड नॉट 2 इन. सो साइक्लोहेक्स 1 इन, और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 3 पोजीशन पे, तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा. सो 3 मिथाइल. Okay, the methyl groups, they are the prefix substituent always. Okay, so 3 methyl cyclohex 1 in. So the name क्या होगा कंपाउंड का? 3 methyl cyclohex 1 in. ठीक है. सो ये था पिछला वीडियो से मैंने 2 एग्जांपल्स करके दिखाया ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है, रूल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. सो नाउ वी विल सी दी other rules. Okay, so the rules I have written here, so the other rules we will see today. Okay, so the rule says that if, okay, you see here one example I have shown you कि अगर रिंग है और स्ट्रेट सब्सटीट्यूएंट है जो कि रिंग के बाहर है, ठीक है, एक रिंग है और सब्सटीट्यूएंट्स है जो कि रिंग से अटैच्ड है लेकिन रिंग के बाहर है. जब कभी रिंग में जो कार्बन है, यू काउंट द नंबर ऑफ रिंग कार्बन इन रिंग्स 1 2 3 4 5. ओके, 5 कार्बन इन रिंग. रिंग में कितना कार्बन है? 5, राइट. और बाहर कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन. सो जब कभी भी रिंग से ज़्यादा कार्बन बाहर में हो, ठीक है, एल्काइल सब्सटीट्यूएंट है ये, अगर रिंग का कार्बन से बाहर का जो कार्बन है, सब्सटीट्यूएंट का जो कार्बन है वो ज़्यादा होगा. सो हियर यू कैन सी दैट द रिंग कंटेन्स ओनली 5 कार्बन बट द सब्सटीट्यूएंट, ओके, I mean this group is a whole chain, it contains 6 carbon. So whenever such case arise that the ring contains the less number of carbon atom than the alkyl chain, then the alkyl chain should be treated as the parent chain. ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रिंग को ही पेरेंट चेन मान के चलते थे, ठीक है, लेकिन जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि एल्काइल चेन में जो कार्बन है वो ज़्यादा हो रिंग से, तो एल्काइल चेन को ही पेरेंट चेन मानना पड़ेगा और ना कि पेरेंट रिंग को. तो अगर एल्काइल चेन पेरेंट हो जाएगा तो रिंग क्या हो जाएगा? रिंग हो जाएगा हमारा सब्सटीट्यूएंट, ठीक है. अगर ऑब्वियसली इफ़ यू टेक दीज एज द पेरेंट, तो पेरेंट ये लेने के बाद जो भी बाहर का जितना भी कुछ बचा हुआ है सब सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा. दैट मीन्स दीज रिंग विल नाउ एक्ट एज द सब्सटीट्यूएंट बिकॉज दिस वन इज एक्टिंग एज द पेरेंट चेन, है ना, पेरेंट चेन. सो इस रूल में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आई विल टेल यू, बट एज ऑफ नाउ जब भी रिंग में कार्बन कम हो और जो बाहर एल्काइल चेन रिमेंबर आई एम टेलिंग, नो फंक्शनल ग्रुप, नो डबल बॉन्ड, नथिंग, only the alkyl chain, only the carbon and hydrogens, okay, no halogens, nothing. So if such type of case arise, then these alkyl chain should be treated as the parent chain. तो parent chain मतलब ये suffix में होगा और substituent means ये prefix में आएगा, ठीक है. So name of these compounds, so now number it. सो नंबरिंग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ऐसा नंबरिंग करना पेरेंट चेन में कि ये जो सब्सटीट्यूएंट है इसको लोएस्ट नंबर मिले. सो ऑब्वियसली राइट हैंड से तो नंबर कर नहीं सकते बिकॉज यू इफ़ यू डू फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5. सो दिस ग्रुप, दिस इज़ व्हाट साइक्लोपेंटाइल, 5 कार्बन्स एंड साइक्लिक, तो साइक्लोपेंटाइल 5 मिलेगा. लेकिन अगर लेफ्ट से नंबरिंग विद डू, सो व्हाट विल हैपन? 1 2 3 4 5 6, ठीक है. सो लेफ्ट से नंबरिंग करना ठीक होगा क्योंकि लेफ्ट से नंबरिंग करने से जो ये सब्सटीट्यूएंट है, ओके, रिमेंबर दिस इज द सब्सटीट्यूएंट नाउ, सो इट विल गेट नंबर 2. तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग होगा, ठीक है. तो सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखते हैं. तो सब्सटीट्यूएंट इज द साइक्लोपेंटाइल ग्रुप. किस पोजिशन पे है? 2 पोजिशन पे है साइक्लोपेंटाइल ग्रुप. सो राइट 2 साइक्लोपेंटाइल. सो यस, वाई एम नॉट राइटिंग पेंटेन एंड वाई पेंटाइल? बिकॉज सब्सटीट्यूएंट जब भी हम लोग लिखते हैं सो वाई एल लगाते हैं, ठीक है, ना कि ए एन ई. ओके, सो 2 साइक्लोपेंटाइल एंड जो हमारा मेन चेन है वो तो सफिक्स में आएगा. सो व्हाट इज़ द मेन चेन? द मेन चेन इज कंटेनिंग 6 कार्बन और सारा ही सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन होगा. सो 2 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, ओके, 2 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट. सो दिस रूल इज लाइक दिस.
नो सिमिलरली हियर, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कार्बन्स है और यहाँ पे रिंग में है 6 कार्बन। तो रिंग में 6 कार्बन है और बाहर 4 कार्बन है, तो रिंग को ही पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। जहाँ भी कार्बन ज़्यादा है वो पेरेंट चेन होगा, और जो पेरेंट चेन होगा वो हमेशा सफिक्स में आता है, और जो सब्सटीट्यूएंट है वो हमेशा प्रीफिक्स में आता है। सो नाउ दिस इज द सब्सटीट्यूएंट, दिस इज द सब्सटीट्यूएंट, ओके। So you can note down these rules. Here the rule I have written you. Whatever I am telling, no, I have written here. राइट। सो पेरेंट चेन हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन है। सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या होगा, ओके। वंस आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू सी दिस ग्रुप, यू हाउ कैन यू नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, ये 1 होगा, राइट। पेरेंट चेन में ही हमेशा नंबरिंग करना, राइट। यू नंबर इन द पेरेंट चेन ऑलवेज सो दैट देर विल बी नो कन्फ्यूजन। सब्सटीट्यूएंट में भी नंबरिंग होगा अगर कम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है तो। सो नंबरिंग किधर से भी करो, क्योंकि कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है, नंबरिंग इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 पोजीशन पे हमारा सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है, राइट। 1 पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट, और मैंने पहले ही रूल में बताया था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड के साथ में एक ही सब्सटीट्यूएंट है तो सब्सटीट्यूएंट का नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन वी नीड नॉट मेंशन इफ देर इज ओनली 1 सब्सटीट्यूएंट। सो सिंस हियर ओनली 1 सब्सटीट्यूएंट इज देयर, नो नीड टू मेंशन द पोजीशन, ओके। यू कैन नॉट ऑल्सो, राइट। So now what is the name of the substituent? So substituent, if you see, it is what, 1, because the numbering you will start from that carbon connected to the parent chain, 2 and 3, because this is the longest chain, not this one. So 1 2 3, so 1 position pe methyl hai, so the name will be 1 methyl 1 methyl propyl, because 3 carbons, 1 methyl propyl cyclohexane। 1 position में methyl, 3 कार्बन्स मीन्स प्रोपाइल क्योंकि सब्सटीट्यूएंट है, एंड देन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। या फिर अगर तुम लोग को आइसो सेक टर्ट वट एवर आई हैव एक्सप्लेन इन द अर्लियर वीडियो अगर याद होगा, सो ये ग्रुप को बोला जाता है सेक ब्यूटाइल, बिकॉज ये जो कार्बन है जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, वो कार्बन अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो वो कार्बन जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड होगा और जो मेन चेन के अलावा 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी ऑल्सो रिटन एज सेक ब्यूटाइल, sec butyl। why butyl? Because there are 1 2 3 4 carbons, okay। so sec butyl cyclohexane, okay, sec butyl cyclohexane। so the name of this compound, either you can write 1 methyl propyl cyclohexane or you can write sec butyl cyclohexane, okay। so now come to the next rule, ठीक है। अभी मैंने एक बात बोला था कि जो रिंग में कार्बन है और जो बाहर जो एल्काइल चेन में कार्बन है, अगर रिंग का कार्बन ज़्यादा है तो रिंग को पेरेंट चेन ट्रीट करना, लेकिन अगर बाहर एल्काइल चेन में कार्बन ज़्यादा है तो एल्काइल चेन पेरेंट चेन के जैसा ट्रीट होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो बाहर वाला एल्काइल चेन है, ठीक है, बाहर वाले एल्काइल चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है या तो डबल बॉन्ड होता है, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इन वन गो, राइट। अगर जो बाहर का जो एल्काइल चेन है, राइट, इफ़ देयर इज़ अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट एल्काइल चेन, यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ कि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ये सब नहीं था, सिंपल एल्काइल चेन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एल्काइल चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो कि जो एल्काइल चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस एल्काइल चेन को जो रिंग के बाहर प्रेजेंट है उसको हमेशा पेरेंट चेन के जैसा ही ट्रीट करना होता है, राइट। जो एल्काइल चेन है जो रिंग के बाहर प्रेजेंट है और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, आइदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम लोग पेरेंट चेन के जैसा ट्रीट करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने का ज़रूरत ये है कि दैट alkyl chain may not contain the more number of carbon atom. So if you remember, if you see here that this alkyl chain contains only 3 carbon atoms, but this benzene ring contains 6 carbon atom. 6 carbon atom benzene में होते हुए भी we are taking these as the parent chain. 6 carbon benzene में होते हुए भी parent chain we are considering this one. Why? Because this one contains the functional group.
ओके। सो द रूल आई हैव रिटन हियर दैट दो कार्बन आइटम ज़्यादा नहीं भी हो सकता है ये एल्काइल चेन में, ठीक है, 3 ही है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो ही पेरेंट चेन होगा। तब हम लोग लेंथ को नहीं देखेंगे कि वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। सिमिलरली हियर, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 3 कार्बन्स इन द रिंग ऑल्सो एंड 3 कार्बन्स हियर ऑल्सो। सो यू रिमेंबर दैट that the alkyl chain which contains the functional group may not contain the more number of carbon atom ring के जैसा, but then also it will be treated as the parent chain. Okay, so how will name it? So this is the parent chain. So start numbering we will start from which one? The functional group. Numbering we will start from the functional group 1 2 3, right? वन ऑप्शन इज देयर, इधर से ही नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा ऑलवेज। सो 1 2 3, सो ये हमारा सब्सटीट्यूएंट होगा। अगर ये पेरेंट चेन होगा तो ये सब्सटीट्यूएंट, एंड सब्सटीट्यूएंट इज कनेक्टेड टू 2 पोजीशन। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटीट्यूएंट? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। Please refer to the previous videos in the playlist. Okay, it is given in the description, the playlist. Okay, so there you can see, because I know that if you don't see all that videos you will get confused. So 2 cyclohexyl, not hexane, क्योंकि ये substituent है hexyl, YL. Okay, substituent लिखोगे तो YL, और main chain में लिखना हो तो ANE. तो 2 cyclohexyl, parent chain का नाम क्या होगा? prop, because 3 carbons 1 2 3, right? and 1 position पे क्या है? 1 पोजीशन पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, सो प्रोपान 1L, प्रोपान 1L, राइट। 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोप, बिकॉज 3 कार्बन एंड 1 पोजीशन पे है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम होता है AL, तो 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपान 1L, राइट। सिमिलरली यू ट्राई टू नेम दिस वन। सो ये होगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा बिकॉज देयर इज द डबल बॉन्ड, सो 1 2 3। 2 पोजीशन पे है साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, okay, and this is what prop, 1 position पे double bond, so prop 1 in, right। 2 cyclopropyl, 2 position पे substituent prop, because the parent chain contains 3 carbons, 1 position पे double bond, so 1 in। come to the next rule। so next rule says that अगर कोई एलिसाइक्लिक रिंग है, अभी एलिसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक क्या होता है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट ऑल्सो you can see in the playlist। okay, I'll not explain here। so if an alicyclic ring is connected to the benzene ring, this is a benzene ring and this is the alicyclic ring। अगर बेंजीन के साथ में एलिसाइक्लिक रिंग कनेक्टेड होता है तो हमेशा बेंजीन को ही पेरेंट चेन मान के चलना है। बेंजीन से ही नेम एंड होना चाहिए, दैट मीन्स बेंजीन शुड कम इन द सफिक्स एंड द एलिसाइक्लिक रिंग नेम शुड कम इन द प्रीफिक्स। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो द एलिसाइक्लिक रिंग इज व्हाट? इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है ये, राइट। किस पोजीशन पे कनेक्टेड है? यू कैन कंसिडर एनीथिंग बिकॉज ओनली 1 सब्सटीट्यूएंट इज देयर, नो नीड टू नंबर। okay, then also, so it will be cyclohexyl benzene, you can write 1, no problem, 1 cyclohexyl benzene, because benzene को parent chain कंसिडर करना है, एंड जो भी बचा हुआ ग्रुप है लाइक एलिसाइक्लिक रिंग, तो इसका नेम क्या है? साइक्लोहेक्साइल। सो अगर बेंजीन सफिक्स में आया, साइक्लोहेक्साइल प्रीफिक्स में आएगा, और बेंजीन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? यू कैन कंसिडर 1 बिकॉज ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, ठीक है। सो 1 लिख सकते हो, 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। सिमिलरली इफ यू कंसिडर दिस ग्रुप, दिस कंपाउंड, सो हियर इफ यू सी दिस इज द पेरेंट चेन, क्योंकि बेंजीन रिंग है ये वाला, ठीक है। बेंजीन के साथ ही सफिक्स एंड होना चाहिए, मीन्स द पेरेंट चेन शुड कंटेन द बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन। तो अगर ये पेरेंट चेन हुआ तो ये हमारा सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, ये पूरा सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, राइट। अभी सो बेंजीन रिंग के किस कार्बन के साथ ये सब्सटीट्यूएंट कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5 6, 1 पोजीशन पे, ठीक है। इसको भी नेम कर लो, सब्सटीट्यूएंट को भी नेम कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्सटीट्यूएंट? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट 4 nitro, in 4 position nitro NO2 group is there, this is NO2, okay, 4 nitro, always the substituent comes first and then the parent chain। ये तो हमेशा याद रखना कि substituent का नेम प्रीफिक्स में आता है और मेन चेन जो होता है वो हमेशा सफिक्स में लिखा जाता है। सो 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। 4 नाइट्रो, ये ग्रुप क्या है? साइक्लोहेक्साइल है, सब्सटीट्यूएंट होगा तो YL आएगा, नॉट ANE।
4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्साइल। अभी 4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्साइल तो ये है, इसका नाम लिखो। एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट इज कनेक्टेड टू विच कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग? 1, sorry, here I have made one mistake, that this should be 1, no, this carbon should be 1 because this carbon is connected to the functional group, so this carbon should be 1. Remember, the functional group containing carbon should be always number 1, so this will be 2, 3 and 4, right, like this. So benzene ring का किस कार्बन के साथ में ये सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है? 4. सो ब्रैकेट में लिखो सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पढ़ाया है मैंने। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को एक ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस पोजीशन से पेरेंट चेन का कनेक्टेड है? 4 पोजीशन है। 4 पोजीशन में 4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्साइल, ये वाला, ठीक है। और इसका नेम क्या होगा? बेंजीन। We will not write completely benzene because one aldehyde group is there, so the name will be benzaldehyde. Okay, the name will come as benzaldehyde because the aldehyde group connected to the benzene ring is known as benzaldehyde. Okay, this you have to remember, that the aldehyde group connected to the benzene ring is known as benzaldehyde. So 4 nitrocyclohexyl benzaldehyde. Okay, or benzene 1 aldehyde, same thing, but this is the common name, like benzaldehyde normally we say. जब भी एक एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड होता है बेंजीन रिंग के साथ, उसका नेम होता है बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। सो दीज आर सम कॉमन नेम्स वी यूज फॉर सम व्हाट टू से कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सब कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसका कॉमन नेम्स तुम लोग को पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। सो दीज यू कैन जस्ट नोट डाउन, बिकॉज समटाइम्स यू विल गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड, मे बी द IUPAC name also they can ask you, so you can just note down this one. Okay, now we will see the last rule. The last rule we will see now and we will end. Okay, so the last rule says what, कि अगर इससे समझा देती हूँ। सो द लास्ट रूल सेज व्हाट, कि अगर जो पेरेंट चेन है, जो एलिसाइक्लिक रिंग है, वो रिंग के अलावा अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यू कैन सी हियर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इफ विद द एलिसाइक्लिक रिंग one carbon containing functional group is there, like CN, like COH, like CONH2, like CHO, COCl, COOR, okay, ester, like that. तब कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे? तब नेमिंग थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? ये सब नेम यूज़ करना पड़ेगा। देन यू कैन नॉट राइट oic acid for carboxylic acid. Normally we write OIC acid for carboxylic acid, right? Carboxylic acid के लिए हम लोग लिखते OIC acid, ठीक है, सफिक्स नेम यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड के लिए we write AL, CN के लिए we write nitrile, ओके, लाइक दिस। लेकिन जब ऐसा हो कि रिंग के साथ में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब नेम हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO we will write कार्बाल्डिहाइड, CN कार्बोनाइट्राइल, लाइक दैट। ओके, सो वी विल सी हियर। सो ये हमारा पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन में याद रखना ये कार्बन नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसा नाम लिखते हैं। पेरेंट चेन में दिस इन द पेरेंट चेन दिस कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई वी राइट द नेम लाइक दिस टू tell that this carboxylic acid contains one carbon, ठीक है। so the name of this compound is what? cyclohexane, and the CN is what? the CN is what written as carbonitrile, क्योंकि ये CN पेरेंट चेन में कनेक्टेड नहीं है, ये अलग से है। इसके लिए हम लोग इसका पूरा नाम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल एंड नॉट नाइट्राइल ओनली, ठीक है। नॉर्मली हम लोग नाइट्राइल लिखते हैं, लेकिन ऐसा केस में जहाँ पेरेंट चेन के अलावा CN ग्रुप है, इसमें हम लोग कार्बोनाइट्राइल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यू रिमेंबर कि दैट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स, वेयर देयर इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अपार्ट फ्रॉम द रिंग, the names you will write like this. So you will write cyclohexane carbonitrile. Cyclohexane carbonitrile, the name of this compound will be cyclohexane carbonitrile. Okay, the name of this compound, first of all you number it 1 2 3 4 5 6, वन यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, सो नेम विल नंबर विल स्टार्ट हियर, देन 2 3 4 5 6, you know, now you know the numbering, no need to explain, right? Name how you will write. So 3 पोजीशन पे नाइट्रो, तो सबसे पहले ये लिखो 3 नाइट्रो,
प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट 3 नाइट्रो। रिंग का नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्स। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 2 इन, ठीक है। और एक चीज़ है ये, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसका नेम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमेंबर नॉट 1 ओइक एसिड जैसे पहले लिखते थे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट बाय प्रैक्टिस इट विल कम। नाउ द लास्ट वन। सो हियर हाउ डू वी नंबर? सो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करो नंबरिंग, राइट। सो 2 पोजीशन पे क्लोरो, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, 2 क्लोरो, राइट, 2 क्लोरो। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, राइट। 1 पोजीशन पे क्या है? कार्बोक्सेमाइड, 1 कार्बोक्सेमाइड, right. So this is the name of this compound. So this was the last rule of these cyclic compounds. Okay, so in 2 videos I have completed these cyclic compounds. Okay, IUPAC nomenclature of cyclic compounds. Now, so now what is your task? You have to do more and more examples, more and more questions to get it clear. Okay, so rules I have told you, if you want you can write out down the rules clearly, okay, and then you can do questions based upon that question. If you get doubts you can post it in the comment box. I will be very much, what to say, I will reply. Okay, and if you like this video, please if you find this video useful, please like it, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.